Hello students, I hope you must have done these chatbots that I had discussed last in my last class. So right now we are going to continue further. They have written as you interact with more and more chatbots, you would realize that some of them are scripted or in other words are traditional chatbots while others are AI powered and had more knowledge. With the help of this experience, we can understand that there are two types of chatbots around us, scriptbot and smartbot. Let us understand what each of them mean in detail. First is scriptbot and the second is smartbot. Scriptbots are easy to make and smartbots are flexible and powerful. Scriptbots work around a script which is programmed in them, whereas smartbots work on the bigger databases and other resources directly. Mostly, scriptbots are free and are easy to integrate to a messaging platform. Smartbots learn with more data. Scriptbots In scriptbots, no or little language processing skills are required, but in smartbots, coding is required to take this up on board. There is very limited functionality in the scriptbot, and there are very much wide functionality in the smartbot. So this was a difference that we have just checked it out. Now let us understand more about these script boards and smart boards with the help of examples. As soon as the machine got triggered by a person, it used to follow the script and answer accordingly. Others example of script board may include the bots which are developed in the customer care section of various companies. Their job is to answer some basic queries that they are coded for and connect them to human executive once they are unable to handle the conversation. So if we understand it in Hindi, it means कई बार जब हम लोग कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो हमें ये पूछते हैं हिंदी के लिए एक दबाएं, पंजाबी दे लई दो दबाओ, फॉर इंग्लिश प्रेस थ्री। तो इसमें अगर आप लोग फोर ऑप्शन मीन्स फोर प्रेस कर दोगे तो दे डू नॉट हैव एनी आंसर, मीन्स दे आर जस्ट स्क्रिप्टेड। उनको बोला गया है कि एक पे ये काम करना है, दो पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है, तो मीन्स दे आर स्क्रिप्टेड। अगर आप आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछ लोगे देन उनके पास उसका आंसर नहीं होता। अब अगर हम लोग स्मार्ट बोर्ड की एग्जांपल लें, ऑन द अदर हैंड ऑल द असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, Cortana, Siri, etc. can be taken as a smart boards as not only they can handle the conversation but can also manage to do other tasks which make them smarter. For example, मैंने अपने Siri को बोला कि Siri means मेरे Apple iPhone के Siri को मैंने बोला कि कॉल अ पर्टिकुलर पर्सन, जो भी मैंने नाम लिया तो उसने उसको कॉल कर दिया। मैंने बोला कि सेट अलार्म, तो उसने अलार्म सेट कर दिया। मैंने बोला प्लीज़ स्टार्ट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स, तो उसने वो भी कर दिया। तो मीन्स जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं वो हमारे लिए और भी अलग काम कर सकते हैं, दैट मेक्स देम स्मार्टर इनफ। ओके, नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन लैंग्वेजेस वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, because we all know we are discussing the NLP, natural language processing. So in this we are all talking about the language first, means human language and computer language. How is it different from each other? Let me discuss it. Humans communicate through language which we process all the time. Now हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि आप लोगों ने 9th क्लास में साउंड का चैप्टर पढ़ा था, राइट? तो वो साउंड का चैप्टर कहीं ना कहीं हमें यहाँ काम आएगा कि ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह से हमारे ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होती है। तो हम उसको चेक करते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज विच वी प्रोसेस ऑल द टाइम। और ब्रेन कीप्स ऑन प्रोसेसिंग द साउंड दैट इट हियर्स अराउंड इटसेल्फ एंड ट्राइज टू मेक सेंस आउट ऑफ देम ऑल द टाइम। एज लाइक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है मेरी आवाज़ को सुन के कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि अभी हम लोग NLP पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने ये स्मार्ट बोर्ड और स्क्रिप्ट बोर्ड में NLP का नाम बिल्कुल लास्ट पे लिया, फिर भी आपको इतना आपके दिमाग में चल रहा था कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, NLP कर रहे हैं।
तो हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता ही रहता है साउंड को सुन के और कोई ना कोई उसमें से सेंस निकालता रहता है. इवन इन द क्लासरूम, as a teacher delivers the session, our brain is continuously processing everything and storing it in some place. Also, while this is happening, when your friend whispers something, the focus of your brain automatically shifts from the teacher's speech to your friend's conversation. Why so? Because of the priority, or you want to listen to your friend. So now the brain is processing both the sounds, as you were listening to your teacher and you were listening to your friend also, but is prioritizing the one on which our interest lie. लेकिन सुनता वो उसको प्रायोरिटी दे देता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. अगर तुम्हें टीचर की बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम अपना ध्यान उधर ही रखोगे, और अगर तुम्हें अपने फ्रेंड की बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो इस समय तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो सुनाई देगा. तो मीन्स दिस इज़ द थिंग. नाउ लेट वी डिस्कस दैट साउंड चैप्टर, जो उसमें साउंड में हम लोगों ने पढ़ा था. द साउंड रीचेज द ब्रेन थ्रू अ लॉन्ग चैनल. As a person speaks, the sound travels from his mouth to and goes to the listener's eardrum. The sound striking the eardrum and is converted into neuron impulse, get transported to the brain and then get processed. After processing the signal, the brain gains understanding around the meaning of it. If it is clear, the signal gets stored. Otherwise, the listener asks for the clarity to the speaker. And this is how human languages are processed by the human. आई होप कि आपको समझ आ गया है कि अगर एक किसी पर्सन ने कुछ बोला तो वो सबसे पहले जो साउंड है उसके मुंह से निकल के जो बंदा सुन रहा है उसके ईयर ड्रम तक जाएगी, फिर वो वहाँ से कन्वर्ट होके न्यूरॉन इम्पल्स में कन्वर्ट होएगी और फिर ट्रांसपोर्ट होएगी टू द ब्रेन, और फिर वहाँ पे जाके प्रोसेस होएगी. प्रोसेस होने के बाद जो ब्रेन है वो उसको, अगर तो वो बात क्लियर है तो वो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी और सिग्नल स्टोर हो जाएगा. अगर उसको अभी बात समझ में नहीं आई, आवाज़ धीमी होने की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो क्लैरिटी के लिए पूछेगा, अच्छा बताइए क्या बोला. तो इस तरह से ह्यूमन लैंग्वेजेस जो है वो प्रोसेस होती है बाय ह्यूमन. अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें, ऑन द अदर हैंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स. वी ऑल नो मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1. Everything that is sent to the machine has to be converted to the numbers. And while typing, if a single mistake is made, the computer throws an error and does not process that part. क्योंकि कंप्यूटर में ऑब्वियसली कि अगर हम लोगों को 2 + 3 5 करना है, और अगर हम लोग 2 + 3 की जगह पे हम 13 लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एरर दे देगा. हमें 5 आंसर चाहिए था, वो 15 आंसर दे रहा है. So, and while typing, if a single mistake is made, the computer throws an error and does not process that part. The communication made by the machine are very basic and simple. Lekin, now if we want the machine to understand our language, how should this happen? What are the possible difficulties a machine would face in processing natural language? Let us take a look at some of them here. कि क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करता है. अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला, अगर हम आपस में ह्यूमन आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं. हम इस चैप्टर में ये सीखने जा रहे हैं कि अगर ह्यूमन कोई बात बोल रहा है, मशीन उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, और ऐसी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं मशीन को एक ह्यूमन की बात को समझने में. क्योंकि ह्यूमन की बात कई तरीके से, मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफ़िकल्टी फेस की जाती है मशीन की तरफ से. तो लेट्स सी. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग. देयर आर रूल्स इन द ह्यूमन लैंग्वेज. देयर आर नाउन्स, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव. A word can be a noun at one time and the same word can be an adjective some other time. There are rules to provide structure to a language. This is the issue related to the syntax of the language. Syntax refers to the grammatical structure of a sentence. When the structure is present, we can start interpreting the message. Now we also want to have the computer to do this. One way to do this is to use the part of speech tagging. This allows the computer to identify the different parts of speech. Besides the matter of arrangement, there's also meaning behind the language we use. Human communication is complex.
there are multiple characteristics of the human language that might be easy for a human to understand but extremely difficult for a computer to understand. अब ये क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला कि बहुत से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज में जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करने आसान है, लेकिन अगर वही चीज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल है. अब उसमें क्या मुश्किल है तो हम लोग उसको देखते हैं इस पॉइंट के साथ, एनालॉजी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एनालॉजी का मतलब है कंपैरिजन. ठीक है, तो देखना जरा, डिफरेंट सिंटेक्स बट सेम सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग. कहते हैं सिंटेक्स अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है. जैसे 2+3 इज इक्वल टू 3+2, इनका सिंटेक्स तो अलग है. हियर द वे दी स्टेटमेंट्स आर रिटन इज डिफरेंट बट देयर मीनिंग आर द सेम, दैट इज 5. अब एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन को ये समझ में आ रहा है देखते सारी, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए इसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा, राइट. तो आगे देखिए, डिफरेंट सिमेंटिक्स, अलग अलग मीनिंग बट सेम सिंटेक्स. देखो 2/3 अगर पाइथन 2.7 में लिखा जाए और वही 2/3 अगर पाइथन 3 में लिखा जाए तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होएगा, हालांकि सिंटेक्स देखो बिल्कुल सेम है. तो here the statements written have the same syntax but their meanings are different. In Python 2.7, this statement would result in 1, while in Python 3 it would give an output of 1.5. Students, I don't want to discuss this Python concept here, so I recommend you to go to the Python IDLE and check it once. If you face any problem, so just comment me, I'll solve that. I'll give you another video to just understand this concept. Okay, सो आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है. वो कह रहे हैं कि देखो, अगर सेम चीज़ अगर एक ह्यूमन को कोई बात समझानी है तो उसके लिए सिंपल है. अगर ह्यूमन आपस में बात कर रहे हैं ऐसे अलग अलग सिंटेक्स के साथ, तो ह्यूमन की को बात समझाना आसान है. लेकिन अगर वही चीज़ कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें बहुत डिफरेंट कोड करना पड़ेगा. अब लेकिन क्या करना पड़ेगा ये अभी हम लोग सीख रहे हैं आगे धीरे धीरे. जस्ट चेक इट आउट. अब मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड. अभी हम लोग पहले कंटेक्स्ट रेडी कर लें ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा सकें. मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. देखो एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग है. कैसे? अब उन्होंने 3 सेंटेंसेस हमें दिए हैं, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस. इसको पढ़ के देखते हैं. हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टुक द रॉन्ग बैग. अब एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या निकलता है आपके हिसाब से. हिज फेस टर्न्ड रेड, उसका फेस लाल हो गया. आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टुक द रॉन्ग बैग, कि शायद उसने गलती से कोई गलत बैग उठा लिया तो शर्मिंदा होके उसका फेस लाल हो गया, है ना. मेरे हिसाब से ये मीनिंग निकल रहा है. शायद किसी के हिसाब से ये भी मीनिंग निकल सकता है कि उसको गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया क्योंकि वो जो बैग चोरी करना चाहता था, जो उसका टारगेट था, उसकी जगह पे उसने गलत बैग उठा लिया. देखो एक ही लाइन है लेकिन उसके 2 अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं. ऐसे ही अगर हम लोग अगले वाले पॉइंट को देखें, द रेड कार zoomed past his nose, probably talking about the color of the car. रेड कार है ना, लाल कार का कलर है ना. तो लेकिन यहाँ पे उसने कलर की बात नहीं की. यहाँ पे उसने एक बात की कि शर्मिंदा होने से उसका फेस लाल हो गया, और दूसरी बात पे हम बोल रहे थे कि शायद गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया, है ना. तो हिज फेस टर्न रेड इन द थर्ड स्टेटमेंट, हिज फेस टर्न रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन. अब इसका मतलब भी कोई हो सकता है कि इसका मतलब एक हो सकता है शायद एलर्जी हो गई उसको मेडिसिन खाने के बाद, तो जिसकी वजह से उसका मुंह लाल हो गया. या फिर वो दवाई इतनी कड़वी थी कि उसको उसका टेस्ट नहीं बियर हो पाया, दैट्स वाई उसका मुंह लाल हो गया. तो मतलब देखो यहाँ पे उसने इसको कंक्लूड किया है. क्या कहना चाहता है, मेरी बात मैं यहीं से बोलता हूँ. हियर वी कैन सी द कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. We understand a sentence almost intuitively depending on our history of using the language. जैसे इंट्यूटिव मतलब कि हम लोग अपनी इंट्यूशन लगा लेते हैं. अगर मान लो कि कोई एक बात चल रही है, मैं बोल रहा हूँ ये कार कितनी अच्छी है ना, तो इसका जो कलर है वो लाल है ना. अब इसका कलर लाल है कैसे पता चला? क्योंकि मैं कार की बात कर रहा था. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कार, एंड दैट्स वाई यू गॉट द पॉइंट कि जब मैंने बोला इसका लाल कलर बड़ा अच्छा है. अब इसका किसका मतलब कि मैं कार की बात कर रहा था. तो सिमिलरली एंड दोबारा बात पढ़ता हूँ. वी अंडरस्टैंड अ सेंटेंस ऑलमोस्ट इंट्यूटिवली डिपेंडिंग ऑन अर हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज एंड द मेमोरीज दैट हैव बीन बिल्ट विद इन. In all the 3 sentences, the word red has been used in 3 different ways.
which according to the context of the statement changes its meaning completely. Thus, in natural language, it is important to understand that a word can have multiple meanings and the meanings fit into the statement according to the context of it. आई होप कि मैं आपको ये बात डिलीवर कर पाया हूँ. अब आगे देखते हैं. दिस इज दे आर सेइंग परफेक्ट सिंटेक्स बट नो मीनिंग. कई बार ऐसा होता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कि हम लोग बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता. अब एग्जाम्पल देखिए ज़रा. कहते हैं समटाइम्स अ स्टेटमेंट कैन हैव अ परफेक्टली करेक्ट सिंटेक्स बट इट डज नॉट मीन एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, chickens feed extravagantly while the moon drinks tea. Now, if you will see, this statement is correct grammatically. There is no grammatical error in this statement. But does this make any sense? No. In human language, a perfect balance of syntax and semantics. Semantics का मतलब दोबारा बता देता हूँ, meaning. अब syntax यहाँ पे grammar आ रहा है. Grammar and meaning is important for better understanding. There should be a perfect balance between the syntax and semantics for the better understanding. Now, there are some of the challenges we might have to face if we try to teach computers how to understand and interact in human languages. So how does natural language processing do this magic? अब डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर हमारी भाषा को समझने की कोशिश करता है. जो हम लोग NLP की बात कर रहे हैं, अब NLP का जो मैजिक है वो हम लोग ये डेटा प्रोसेसिंग में समझने जा रहे हैं. तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ. तो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने स्क्रिप्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड कर लिया और हम लोगों ने ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में डिफरेंस देखा. फिर हम लोगों ने देखा कि देखो वर्ड्स और मीनिंग का अरेंजमेंट किस तरह से होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कई बार सिंटैक्स अलग होता है लेकिन मीनिंग सेम होता है, कई बार मीनिंग अलग होता है लेकिन सिंटैक्स सेम होता है, इस तरह से. तो इसको कंप्यूटर को समझाना कितना मुश्किल है. फिर हम लोगों ने देखा कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं, तो कंप्यूटर को वो चीज़ें कैसे समझाएंगे, है ना. फिर हम लोगों ने देखा कई बार ऐसा होता है ग्रामेटिकली एक जो वर्ड है वो बिल्कुल, एक सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा. तो लास्ट में कंक्लूड ये किया कि जब भी कभी ह्यूमन लैंग्वेज को किसी को समझाना है या ह्यूमन लैंग्वेज में एक बैलेंस होता है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो अब किस तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अपना मैजिक दिखाती हैं, तो ये हम लोग डेटा प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं. टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो को देखना इसको डेटा प्रोसेसिंग को समझने के लिए. बाय बाय, टेक केयर.